Hello everyone. Today we are going to continue our chapter number 1, that is history and its sources. This is the video of class 4th. Now we are going to study page number 8. The part is compartments of history. We are going to start compartments of history. Okay? We have done up to why do we study history in the last video, and we are now going to start compartments of history. Okay, let us start compartments of history. Okay, I am going to show you the PDF of compartments of history. Okay, see this. Like this you have to see on the screen. Ancient history. Ancient means बहुत ज़्यादा पुरानी history, that is up to 8th century की जो 8th century तक ही थी वो हमारी कौन सी history थी? Ancient history थी. Ancient history up to the 8th century. And उस history में 8th century में तब तक किसका राज था? मौर्य और गुप्ता रूलर्स का राज था. So ancient history is up to 8th century and Maurya and Gupta rulers were there. Clear? And the next one, medieval history. Medieval history is the middle history, that is between 9th to 17th century. That is between 9th to 17th century. And who was the ruler at that time? Delhi Sultanate and the Mughal rulers. Delhi Sultanate and the Mughal rulers were ruling at that time. Clear? Medieval history is between 9th to 17th century and ancient history is up to 8th century. Clear? एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य और गुप्ता रूलर्स का राज था और मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स का राज था. आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट वन, मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 18th सेंचुरी से हमारी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे किसका राज था? ब्रिटिश रूल का राज था. हमारे देश पर, हमारे इंडिया पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा करने की सोची थी ना. हमारे इंडिया में आकर रहने लग गए थे और हमारे देश को अपना देश बनाने की सोची थी. तो वो ब्रिटिश रूल का राज था, वो की मॉडर्न हिस्ट्री थी जो कि फ्रॉम 18th ऑफ सेंचुरी से थी. क्लियर? तीनों हिस्ट्री समझ में आ गई हैं. दीज आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ हिस्ट्री. First one is ancient history, second one is medieval history, and the third one is modern history. Ancient history is up to 8th century. Medieval history is between 9th to 17th century and the modern history from the 18th century. First में किसका राज था? मौर्यन और गुप्ता रूलर्स का. सेकंड में दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स का और थर्ड वन में ब्रिटिश रूल का. क्लियर? तीनों हिस्ट्री के कंपार्टमेंट्स क्लियर. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस there are two sources of history. In order to make a correct assessments of events, historians depends on reliable sources. There are two sources of history. First one is literary sources and the second one is archaeological sources. First one is literary sources and the second one is archaeological sources. And now we are going to start with the archaeological sources. Here the picture is shown to you. Archaeological sources. Okay, first picture is of coins, second one is of artifacts and third one is of monuments. हम इन तीनों चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या था. We are going to discuss about the two sources. First one is literary and the second one is archaeological. And now with the help of pictures I am going to show you the literary sources and the archaeological sources. With these coins, artifacts and monuments, we are going to discuss about the archaeological sources. First one is, see, these are the literary sources. Now, what are archaeological sources? The material obtained from different sites. The materials obtained from different sites, that are coins, artifacts and monuments. These are the archaeological sources. And the second one, these are the materialistic sources. These are the materialistic sources. And the second one is literary sources, that includes books and manuscripts. These are the handwritten documents. These are the handwritten documents. Clear?
Next one is we are going to discuss the archaeological source. First one is coin. Now what does this coin depicts us? This coin show the picture of the king and the queen. See this coin. This coin show the picture of king or queen. Here you can see the name is written of the ruler that was ruling at that time. Clear? See this picture clearly. This is the picture of king or queen that show you the ruler who was ruling at that time. Clear to you? And the next one is, see the coin shows the year of reign of king or queen, कि उस समय में कौन से राजा का राज्य मतलब कौन सा राजा रूल करते थे उस समय में. क्लियर? इस कॉइन को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1862, 1 रुपी इंडिया 1862, कि ये कॉइन कब बना था. ये 1862 में बना था. ये शो करता है कि उस टाइम मतलब इस कॉइन से हमें ये पता चलता है कि ये 1862 का कॉइन है. भी उस समय में किस राजा का राज था, तो हमें इससे ये पता चलता है. क्लियर? समझ में आ गया? दिस कॉइन शोज द ईयर ऑफ रेन ऑफ किंग और द क्वीन. सी हियर द पिक्चर इज ऑल्सो देयर. क्वीन विक्टोरिया पिक्चर इज देयर. क्वीन विक्टोरिया का राज था तब, तो ये क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर इस कॉइन के ऊपर छपी हुई है. क्लियर टू यू? Next one is the coin shows the language and the metal used during that time. See these coins very clearly. Here something is written on these coins. These coins show us the language. See this language. Which language is used here? Now we are going to discuss the language. कि हमें इस लैंग्वेज से क्या पता चलता है. हमें इस लैंग्वेज से पता चलता है कि उस टाइम में जो रूलर थे वो कौन सी लैंग्वेज मेनली यूज़ करते थे, और कॉइन्स के लैंग्वेज के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है. हमें हिस्ट्री का पता चलता है. क्लियर? एंड द मेटल, कि उस टाइम पे कौन सी मेटल यूज़ होती थी कॉइन्स बनाने के लिए, और मोस्टली कौन सी मेटल उनके काम आती थी. नेक्स्ट वन इज artifacts. We are now going to discuss about the artifacts. We discussed about the coins. These are the archaeological sources. Now this is a picture of the pottery and the picture of jewelry that was used at that time by the kings and the queens or the ordinary people. See, this is the picture of pottery that the people are using this type of pottery and this type of coins at that time. These are also the pictures of pottery and the jewelry. And now here the picture is of clay pottery. Now here what we are going to learn, we are going to learn that at that time clay pottery was used by the people. And in this picture the bronze jewelry is there. Now we came to know about that कि उस टाइम में जो लोग थे वो ब्रॉन्ज की ज्वेलरी यूज़ करते थे. उस टाइम में ब्रॉन्ज मेटल मिलती थी. क्लियर टू यू? Next one is archaeologist. See, these are two pictures of the archaeologist. The people who excavate the artifacts are known as archaeologists. कि जो धरती के नीचे से खोद कर सामान निकालते हैं, कि जो धरती के नीचे से खोद कर ये चीज़ें निकालते हैं, आर्टिफैक्ट्स को निकालते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. देखो इधर ये धरती के नीचे से खोज रहा है और इसने एक स्केलेटन निकाला है, तो ये कौन होते हैं? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. क्लियर? आर्कियोलॉजिस्ट हमें सर्च करके बताते हैं कि उस टाइम में क्या चीज़ होती थी और क्या चीज़ नहीं. आर्कियोलॉजिस्ट धरती के अंदर से खोज कर डिग मतलब खोद कर निकालते थे और आर्टिफैक्ट्स को लेकर आते थे. नेक्स्ट वन इज दिस इज एन ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मॉन्यूमेंट्स. अब ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये ताजमहल की पिक्चर है. देखो आपको नज़र आ रही है, ये हमारा 7th वंडर है ताजमहल. ताजमहल से हमें क्या पता चलता है? देखो ताजमहल अगर हम आज के ज़माने में देखें, आगरा में है, हम इसको देखने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया. तो हमें ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? ये हमें हिस्ट्री से पता चलेंगी. चाहे तो रिटन अकाउंट से पता चलेंगी या फिर हमें इसके डिज़ाइन से पता चलेगा. तो हमें कहीं से तो पता लगाना पड़ेगा ना कि ये कब बना, कैसे बना. तो हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में. ये 7th वंडर ऑफ इंडिया है. ये दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल. तो मॉन्यूमेंट्स भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिससे हमें पता चलता है.
Next one is there. See, here is a question for you. Here is a question for you. Wait. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री? कि इन दोनों में से आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कौन सा है? सी फर्स्ट ऑप्शन इज बुक्स एंड द सेकंड वन इज मॉन्यूमेंट्स. देखो बुक्स में तो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, तो ये कौन सा सोर्स हो गया? लिटरेरी सोर्स. तो ये तो नहीं हो सकता. सेकंड कौन सा है? मॉन्यूमेंट्स. तो मॉन्यूमेंट से हमें पता चलता है ना. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन सा हुआ? मॉन्यूमेंट्स. क्लियर? क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स पे आते हैं हम. लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स दैट इज कॉल्ड द हैंड रिटन बाय समवन, और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम लिटरेरी सोर्स बोलते हैं. सी हियर आर द एग्जांपल्स बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स. बुक्स में भी लिखी होती हैं चीज़ें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी लिखा होता है. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखा हुआ होता है. मैन्यूस्क्रिप्ट इज द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट. तो ये हाथ से लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट वन इज रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ एंशिएंट टाइम. तो उस टाइम के रिटन रिकॉर्ड्स देखो इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सी नॉलेज मिलती है. बुक्स एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, मोरल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर एंड द हेरिटेज ऑफ दैट टाइम. कि बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट से, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी होती हैं चीज़ें, उससे हमें क्या पता चलता है? उस टाइम के रूलर्स के बारे में, मोरल्स के बारे में, ट्रेडिशंस क्या क्या थे, कल्चर क्या क्या था, और हेरिटेज के बारे में हमें पता चलता है. नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स में देखो यहाँ डिफरेंस क्या है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होती हैं? जो हम धरती के नीचे से खोदते हैं, डिग आउट करते हैं और उसको एक्सकवेट करते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स. और लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ये मटीरियलिस्टिक होते हैं और ये मटीरियलिस्टिक नहीं होते. नेक्स्ट वन इज देखो आर्कियोलॉजिकल सर्च कर रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्च कर रहा है, तोड़ तोड़ के चीज़ें डिग कर करके, खोद खोद के ढूंढ रहा है. और जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है? आर्कियोलॉजिस्ट खोद खोद के पता लगाते हैं और हिस्टोरियंस पढ़ पढ़ के. ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा है, हिस्टोरी लगा रहा है हिस्ट्री के बारे में कि उस टाइम में क्या क्या चीज़ें थी. I hope you clear these both archaeological sources and archaeological source and literary sources. I hope you clear this. In the next video, we will discuss the next chapter. Thank you so much. And if you want to get more videos of this chapter, then please subscribe my channel. And if you like my video, then please put the like button. Click the like button. Okay, thank you so much.